Good morning, sir. Good morning, Chaitanya. Please switch on the video. Chaitanya Pachwai, switch on your video. Good morning, sir. Good morning, beta. Chaitanya Pachwai, switch on the video, beta. You are not visible. Good. Here you are. Very good, very good. Okay, now you can switch off the video. Shubham Dali, good morning. Good morning, sir. Good morning, Shubham. Good morning, sir. Dear friends, I was not feeling well on Saturday, okay, and the condition was not up to that level that I could have woken up and send you the message for not the conduction of the class, okay. So sorry for that. So without wasting any time, do you have any doubt, or shall we start the revision the way I do? If you would like to ask your doubts, it is better, so that one by one the doubts would be clear. If on otherwise, we'll continue with our revision. Yes, Anushka. Anushka Dude. Yes, sir. हाँ, क्या करना है? डाउट कुछ पूछना है या मैं मेरे हिसाब से पढ़ा दूं? Sir, you continue with revision. Okay. Anunay Nandagirwar. Yes, sir. What should we do? Sir, you take revision, sir. Okay, the way I, है ना? ठीक. Yes, sir. Okay. बहुत अच्छी बात है. Very good. ठीक है. Just a minute. Is the screen visible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Good. Visible. Just a minute. Let me come to the point. We, as I remember, we have done away up to the northern plains. Was it so? And we were discussing about this Bhangar and Khadar. Is it? Yes, sir. Sorry. Yes, Anunay. What I remember, in our last working class, we have completed up to this section. Bhangar Yes, and sir. Khadar. Okay. Okay. So now one more thing is there, dear students. Just a minute. Let me take out first. Just a minute, huh? Actually, I would like to talk regarding yes, in standard 9th there are 33 students. Okay. 9th how many? 33. 33. Okay, the new students have joined. Then in 9th B, there are 34 students. Okay, it is 7. Total 67 students are there. Okay, now
I have sent the link of Google Classroom for this year. ठीक है, इस साल का क्लास 9th का Google Classroom का लिंक मैंने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था. ओके, राइट नाउ ओनली 52 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड. अभी तक कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है? 52. 52. Okay, so those who have not joined, clear, around 15 students are still left. So जिन स्टूडेंट्स ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन द गूगल क्लासरूम. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि फॉर द रिकॉर्ड मेंटेनेंस आप सभी लोगों को आपका जो एग्जाम पेपर होगा, अभी जो ऑनलाइन असेसमेंट सेकंड कल से स्टार्ट होने वाला है, सो यू हैव टू सबमिट द आंसर शीट कंपल्सरीली ऑन गूगल क्लासरूम. ठीक है, हालांकि गूगल क्लासरूम में जाने में टाइम लगता है, तो आप लोग पहले किस पे भेज सकते हैं? व्हाट्सएप पे, है ना. बाद में वो भले गूगल पे अपलोड करते रहना, परंतु कंपल्सरीली फाइनली उसको अपलोड कहाँ करना है? गूगल पे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So those students who have still not joined the Google Classroom, okay, I am requesting you kindly join it. Okay, चलिए. Sir, So can you that's all. explain Bhangar first? Pardon? Sir, Bhangar, can you that Bhangar which was Anger and father. Just a previous? minute. हाँ, wait, है ना? Okay, now देखिए, the largest part of the northern plain is formed of older alluvium. ठीक है. Now alluvium का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका alluvium. So alluvium is a name given to the soil which was deposited by the rivers in their river valley. जब बारिश के समय नदियों में बाढ़ आती है, तो पहाड़ों से ये नदियां अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी, कंकड़, पत्थर और डिकम्पोज मटेरियल नीचे लेके आएंगी. ये जो डिकम्पोज मटेरियल है, बाढ़ का पानी उतरने के बाद में उस वैली में, उस घाटी में ऐसा जम जाता है. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो वो जो डिकम्पोज मटेरियल से बनी हुई मिट्टी है ना बेटा, वो क्या कहलाएगी? एल्यूवियम. ठीक. अब यहां हम बात कर रहे हैं ओल्डर एल्यूवियम और न्यू एल्यूवियम. तो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम. इसका क्या मतलब है कि आज के तारीख में, आज के मतलब अभी वर्तमान समय में ना, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, तो अभी क्या होता है कि जब रिवर्स में, नदियों में बाढ़ आती है, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन में पानी जमा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन तो 200, 250, 300 किलोमीटर की चौड़ाई में है. तो ऐसा तो नहीं है कि 300 या 350 किलोमीटर की चौड़ाई में क्या आ रही है? नदी की बाढ़ आ रही है. आज के तारीख में तो नदी की बाढ़ कितनी आती है कि रिवर जहां से फ्लो हो रही है उसके दोनों तरफ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हद होगी. ठीक. तो इससे पहले, यानी रिवर, आज के तारीख में नदी में जहां बाढ़ आती है उसको छोड़कर बाकी का जितना भी नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, उसमें कौन सी एल्यूवियम है? उसमें कौन सी एल्यूवियम सॉइल है? ओल्डर एल्यूवियम. अब ये ओल्डर एल्यूवियम कहां से आई? तो मिलियंस ऑफ इयर्स बैक
मिलियंस ऑफ Years ईयर्स, back. है ना। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक क्या हो रहा था, उस समय पर बारिश बहुत ज्यादा होती थी। मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक क्या होता था, बारिश बहुत ज्यादा होती थी, है ना। दूसरा क्या था कि फ्लड प्लेन की हाइट उतनी ज्यादा नहीं थी, तो जो एलिवियम है वो क्या हुआ, ज्यादा लंबी ब्रिथ में, ज्यादा लंबी चौड़ाई में बिछ जाता था, ठीक है। सो वो क्या कहलाएगा, ओल्डर एलिवियम। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It lies above the floodplains of the river and present a terrace-like feature. अब ये जो ओल्डर एलिवियम का इलाका है, यानी जितने एरिया में क्या ओल्डर एलिवियम बिछी हुई है, इट लाई अबाउट द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर, यानी कुल मिलाकर नदियों की बाढ़ यहां तक नहीं पहुंचती। इतनी बात आई समझ में? एंड इट प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर, और किसके जैसे, टेरेस के जैसे। टेरेस का मतलब जो इलाका मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बाढ़ में आता था, वहां हाइट ज्यादा होगी, फिर क्या हुआ, बारिश कम होने लगी तो बाढ़ का पानी उतना ज्यादा नहीं फैलता, है ना। तो कुछ दिनों बाद इतनी हाइट हो गई, इतनी हाइट, इट स्टार्ट शोइंग विच टाइप ऑफ फिगर, टेरेस लाइक फिगर। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now, this part of older alluvium, है ना, नॉर्दर्न प्लेन का ये जो एरिया है, जिसमें कैसी है, ओल्डर एल्यूवियम है, जिसमें क्या है, Older Older alluvium. ठीक है। तो जिसमें ओल्डर एल्यूवियम है, दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। इसको क्या कहते हैं, Bhangar. भांगर। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. The soil in this region, now the soil in this region मतलब जो भांगर वाला इलाका है, कौन सा रीजन, भांगर। Hunger. कौन सा रीजन, भांगर, ठीक है। So the soil in this region contains calcareous deposit, यानी जो भांगर रीजन की सॉइल है उसमें कैल्शियस डिपॉजिट मतलब कैल्शियम न्यूट्रिएंट वाले छोटे छोटे पत्थर मिट्टी में शामिल होते हैं, यानी बिल्कुल बारीक मिट्टी भी होगी और उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे पत्थर होंगे, ठीक है। ये जो कैल्शियस डिपॉजिट हैं, दीज आर लोकली नोन एज कंकर। हम बोलते हैं ना कंकर पत्थर शामिल हैं, हम कभी कभी शब्द Yes, यूज sir. करते हैं ना कि मिट्टी में जैसे क्या है, आटे में, जैसे आटे मिट्टी में में और ग्रेन्स में। हाँ, मिट्टी में कंकर पत्थर है हम बोलते हैं ना, तो वो कंकर जो है इसमें है, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Then the newer younger deposit of floodplain are called खादर। अब वो जो ओल्डर एल्यूवियम है वो मिलियंस ऑफ इयर्स बैक जम गई थी, अभी जो यंगर डिपॉजिट, यंगर मतलब जो नई मिट्टी जमी हुई है, तो नया जो डिपोजिशन होगा वो कहां पर होगा, फ्लड प्लेन में। कहां होगा, फ्लड प्लेन। यानी जहां पर रिवर्स की, नदियों की बाढ़ आती है, वो एरिया क्या कहलाएगा, फ्लड प्लेन। वह एरिया क्या कहलाएगा, Flood plain. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक। Yes, तो आज के तारीख में जहां पर नदियों में बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ के साथ में क्या जमा होता चला जाएगा बेटा, एल्यूवियम, है ना। तो वो जो नए एल्यूवियम वाला इलाका है उसको क्या कहेंगे, खादर। Father. खादर। ठीक। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लगभग हर साल नदी में क्या आएगी, बाढ़ आएगी, और हर बाढ़ के साथ में
उसमें क्या जमा होगा, मिट्टी पत्थर कंकर जमा होते चले जाएंगे। इतनी बात आई समझ में बेटा? Yes, sir. तो हर साल खादर में क्या होती है, न्यू एल्यूवियम जमा होती है, एंड सो दिस एरिया इज फर्टाइल एंड देयरफॉर आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसलिए ओल्डर एल्यूवियम के कंपैरिजन में, यहाँ पर फर्टिलिटी ज्यादा होती है, और इसलिए दिस एरिया इज आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर कैसा होगा, इंटेंसिव मतलब एग्रीकल्चर ज्यादा होगा। एग्रीकल्चर। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलो, Yes, sir. now next is the peninsular plateau. The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो क्या है, एक टेबल लैंड है। टेबल लैंड मतलब जैसे हमारा टेबल होता है ना, हाइट बढ़ेगी और फिर फ्लैट सरफेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बनी है, सो ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। इसका मतलब इस पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में कौन सी रॉक प्रेजेंट नहीं होती, सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी रॉक्स नहीं है, मैक्सिमम ये किससे बना हुआ है, मैक्सिमम ये किससे बना है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इज इट क्लियर? इट इज मेड अप ऑफ, बोलो बेटा। सर जैसे कि यहाँ पे 3 रॉक से बनी है, तो सर अभी जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वो ज्यादा स्ट्रांग होगी और कोई ज्यादा थोड़ी वीक होगी, तो मतलब ऐसे लैंड मतलब कभी कभी जैसे अर्थक्वेक आएगा तो ऐसे कुछ लैंड मतलब वो नहीं होगा, टूट नहीं जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना, ठीक है। परंतु ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन है, कौन सा, पेनिनसुलर प्लेट्यू। गुड। दिस इज द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जब लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में अर्थ कन्वर्ट होना शुरू हुई थी, उस समय पर सबसे पहले जो जमीन बनी थी, जो सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर बना था, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो उस सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू उस सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स से बने होने के बावजूद भी द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंड ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लैंड कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू। इतनी बात आई समझ में? Yes. ओके सर। इसलिए पेनिनसुलर रीजन में, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, वहां पर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It was Yes, sir. formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land, and thus making it a part of the oldest landmass. ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क, ठीक है। The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसमें कहीं-कहीं पर ब्रॉड वैलीज, काफी ज्यादा चौड़ाई की वैलीज होंगी,
या कहीं कहीं पर शैलो वैलीज। ब्रॉड एंड शैलो का मतलब क्या है कि चौड़ाई ज्यादा है, परंतु शैलो मतलब वहां पर मिट्टी की गहराई कैसी है, कम है। मिट्टी की गहराई कैसी है, कम है। ठीक है। इसलिए अपर सरफेस है ना 2, 3, 4 फीट तक मिट्टी मिलेगी। उसके बाद क्या शुरू हो जाएंगे, पत्थर शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं, पत्थर। ठीक है। जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया में, नॉर्दर्न प्लेन है या फिर नर्मदा रिवर वैली का एरिया है, इन इलाकों में क्या होता है, खोदते जाओ खोदते जाओ, 3 मंजिला मकान की हाइट डेप्थ तक भी जाएंगे, 3 मंजिला मकान की डेप्थ तक भी जाएंगे, तब तक भी क्या मिलती जाएगी, मिट्टी, पत्थर आता ही नहीं। ठीक है। तो शैलो वैली का मतलब मिट्टी की गहराई कैसी है, कम है। देन राउंडेड हिल, बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाई वाली हिल नहीं है, ऐसी है जैसे हम लोग, हमारे मानिकगढ़ सीमेंट के पीछे पहाड़ है Yes, sir. यस सर। ना, हमारे बैक साइड में जो पहाड़ है तो बिल्कुल ऐसी खड़े पहाड़ नहीं है, बल्कि पहाड़ कैसा है, ऐसा चल के, और ऊपर का सरफेस कैसा हो गया, प्लेन है। प्लेन है, राउंडेड है, प्लेन ठीक है? सरफेस। Good. This plateau consists of 2 broad division. Peninsular plateau को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। So what are the 2 broad divisions of peninsular plateau? The Central Highland and the Deccan Plateau. क्या कहलाएगा, Central Highland and डेक्कन प्लेटू। now the part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada river, covering a major area of the Malwa plateau, is known as the Central Highland. ठीक, तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जितना हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल हाईलैंड। सो क्या कहलाएगा, सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। अब जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है, ठीक है, तो साउथ में, सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में कौन सी रेंज है, सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज। ठीक, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी है, अरावली। अरावली। ठीक, द फर्दर westward extension gradually merge with the sandy and rocky desert of Rajasthan. तो अरावली माउंटेन्स क्रॉस करके और वेस्ट में जाएंगे तो धीरे धीरे क्या मिलना शुरू हो जाएगा, सैंडी और रॉकी डेजर्ट मिलेगा। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन, यानी इस सेंट्रल हाईलैंड एरिया में, सेंट्रल हाईलैंड जो है उसमें कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है। सो विच आर द मेजर रिवर, द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड द केन। ठीक है, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब हम आएंगे, नाउ इट इंडिकेट द स्लोप, और वो उसका क्या बताता है, स्लोप बताता है। द सेंट्रल हाईलैंड are wider in the west and narrower in the east. वेस्ट डायरेक्शन में wider है, वेस्ट डायरेक्शन में कैसे हैं, wider। सपना, सपना कुमारी, स्विच ऑफ योर वीडियो। सर आई हैव स्विच ऑफ। बेटा यहाँ से तो ऑन दिख रहा है, वीडियो बंद करो। आपके इसमें थोड़ा सा लेट पता चलता है, इसमें जैसे उसने बंद कर दिया है, आपके इसमें लेट पता चलता है। ओके, ठीक है, ठीक है, लेट अस सी दैट आल्सो। वेल,
The eastward extension of this plateau are locally known as the Bundelkhand and Baghelkhand. ये हमने मैप में डिस्कस किया था. Yes, sir. दोबारा समझाऊं क्या? दोबारा समझाऊं मैप की हेल्प से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैप ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. गुड. जस्ट अ मिनट, है ना? अभी इसको ध्यान से देखना. देखो ये जो हिस्सा है ना, यहां से, ठीक है, ठीक है. इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? पेनिनसुलर प्लेट्यू. क्या है ये? Peninsular plateau. ठीक है. अब इस पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में ये है नर्मदा रिवर. ठीक है. तो ये नर्मदा रिवर एक प्रकार से इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. ये जो ऊपर का हिस्सा है जहां राइट नाउ पेन घूम रहा है, ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल हाईलैंड. क्या कहलाएगा बेटा? Central. Central Highland. ठीक है. देन इस सेंट्रल हाईलैंड में भी, ठीक है, अब इस सेंट्रल हाईलैंड में छोटे छोटे डिवीजन बनेंगे. क्या बनेंगे? छोटे छोटे डिवीजन. Division. ठीक है. Yes, sir. तो जो छोटे छोटे डिवीजन हैं वो क्या है? ये है मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू कहाँ तक रहेगा? तो ये जो सेक्शन है इतना बड़ा, ये क्या कहलाएगा? मालवा प्लेट्यू. क्या कहलाएगा? Malwa plateau. Malwa कहाँ plateau. तक? इस अरावली रेंज के, है ना? अब ये जो मालवा प्लेट्यू है इसका कुछ हिस्सा कहाँ पर? स्टेट ऑफ पंजाब और हरियाणा में भी माना जाता है. ठीक है. तो ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड यहां से लेके यहां तक. ठीक है. मेन डिवीजन किसके द्वारा है? नर्मदा रिवर. ठीक. अब इसमें ये हिस्सा हो गया मालवा प्लेट्यू. अब इस तरफ आ जाओ तो इतना हिस्सा क्या हो गया? बुंदेलखंड. उसके बाद इधर आ जाओ तो ये हो गया बघेलखंड. और जब झारखंड स्टेट में पहुंच गए तो ये क्या हो गया? छोटा नागपुर प्लेट्यू. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इसके नीचे यहाँ पर नर्मदा रिवर से नीचे इस तरफ आ गए तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? डेक्कन प्लेट्यू. क्या कहलाएगा? Deccan plateau. सर मालवा प्लेट्यू के बाद में बुंदेलखंड आता है कि वो दूसरा वाला? बेटा मालवा प्लेट्यू की रीजन क्रॉस होने के बाद बुंदेलखंड आएगा. क्या आएगा?
बुंदेलखंड। ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले का नाम सुना है? यस सर। हाँ, Yes, तो sir, एमपी सुना है। जो ग्वालियर, ललितपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश का इटावा, ठीक है, सागर, इतना जो डिस्ट्रिक्ट है, 8 या 10-12 डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? बुंदेलखंड, है ना। उसमें दतिया आएगा, ठीक है, तो वो इलाका कहलाएगा बुंदेलखंड। फिर जैसे ही मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, पन्ना, ये जो जिले हैं, इन जिलों के आसपास छतरपुर, ठीक है, ये जिलों के आसपास का एरिया क्या कहलाता है? बघेलखंड। ये बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, और फिर ये छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक, संध्या डाउट है? नो सर, अंडरस्टूड। चलिए, अब उसके बाद नीचे कहा, ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे उसमें रिवर्स की, ठीक है। सो जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है ना, इसमें बहुत सारी रिवर्स हैं। ये एक रिवर है, यहां मैंने पेन की अपनी टिप रखी। ये रिवर कौन सी रिवर है? माही रिवर। कौन सी? माही रिवर। माही रिवर। इस प्लेस से जहां अभी मैंने पॉइंट डॉट डाला है ना, ग्रीन कलर का डॉट मैंने डाला, इस प्लेस से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? माही रिवर। कौन सी? माही रिवर। माही। अब इस माही रिवर को ये चलेगी कैसे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ अरावली रेंज का हायर एरिया आया, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और ये कहां पर आकर के मिलेगी? गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। यहां से थोड़ी ही दूर पे ये है विंध्याचल माउंटेन रेंज। इस विंध्याचल माउंटेन रेंज के इस पॉइंट से एक और रिवर निकल रही है, और ये रिवर कौन सी है? चंबल रिवर। ठीक, अब ध्यान दो, दोनों रिवर्स का जो ओरिजिन है, यानी दोनों रिवर जहां से शुरू होती हैं पास पास है, यानी ये जो इलाका है, ये इलाका क्या हो गया? दोनों तरफ का एक सेंटर पॉइंट हो गया। क्या हो गया? सेंटर पॉइंट। सेंटर का मतलब यहाँ पर हाइट सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पॉइंट के इधर की डायरेक्शन का पानी कहाँ जाएगा? चंबल रिवर में, और इधर की डायरेक्शन का पानी कहाँ जाएगा? माही रिवर में। समझ में आया? यस सर। सेंटर का एरिया होता है, ऐसा जो सेंटर में सबसे हाइट वाला एरिया होता है, इसको कहा जाता है वाटर डिवाइड। क्या कहते हैं इसको? वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। अब रिवर्स की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ से ये चंबल रिवर, ठीक है, उसके थोड़े दूर से एक और रिवर आ गई, ठीक है, दिस इज व्हाट? बेतवा, ठीक, और अदर हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? चंबल है, सिंध है, बेतवा, और ये कौन सी हो गई? सोन रिवर। इतनी बात आई समझ में? यस सर। अब यहाँ पर ये हो गया विंध्याचल माउंटेन, ये हो गया सतपुड़ा माउंटेन।
दोनों के बीच में, दोनों के बीच में ये जो रिवर है ये कौन सी कहलाएगी? दिस इज नर्मदा रिवर। ठीक है, अब सतपुड़ा रेंज यहाँ पर ये जो एरिया है, ध्यान से देखो बेटा, ये एरिया कहलाता है अमरकंटक प्लेट्यू। क्या कहलाता है? अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू क्या कहलाता है? अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, ये महादेव हिल्स का एरिया। ठीक है, चलिए। सो अभी कोई डाउट तो नहीं? नो सर। आगे बढ़ जाए, एक्सप्लेनेशन में आगे जाए। चलिए, नाउ नेक्स्ट है ना, जस्ट अ मिनट। Sorry. So the Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension, है ना? So वो हमने सेंट्रल हाईलैंड का पढ़ा था, मालवा प्लेट्यू, देन आफ्टर बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर। अब आ गए हम किसमें? डेक्कन प्लेट्यू। So the Deccan Plateau is a triangular landmass. शेप किसके जैसा है? ट्रायंगल के जैसा। And it lies to the south of the river Narmada. The Satpura range flank its broad base in the north. ठीक है, so north direction में सतपुड़ा रेंज है, उसके आगे और फिर छोटी छोटी hills चालू हो जाएंगी। So what are these? Mahadev Hills, then after Kaimur Hills, and thereafter Maikal Range. So these form its eastern extension. ठीक है, the Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. इस पूरे डेक्कन प्लेट्यू की हाइट वेस्ट में ज्यादा है और फिर धीरे धीरे हाइट कहाँ की तरफ? ईस्ट की तरफ कम होना शुरू होती है। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes sir. Then, an extension of this plateau is also visible in northeast, locally known as the Meghalaya Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. ठीक है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन यानी बड़ा हुआ हिस्सा कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में। अब इसका मतलब क्या है बेसिकली? ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू का इलाका है, ठीक है, यहां से हुआ शुरू, सतपुड़ा रेंज हुई, सतपुड़ा रेंज खत्म हुई तो ये महादेव हिल्स, उसके बाद में कैमूर हिल्स, आगे की हिल्स इस तरीके से चलती चली गई। ठीक है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है। अब यहां से इतना जो है ये फॉल्ट यानी गैप आ गया। क्या आ गया? गैप है ना। अब जिस प्रकार की पहाड़ियां, जिस प्रकार के रॉक सिस्टम इस डेक्कन प्लेट्यू में है, वही रॉक सिस्टम कहां पर है? यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी। ठीक है, मेघालय के आसपास में भी वही पहाड़ हमें दिखाई देते हैं। इसलिए इस एरिया के जो पहाड़ हैं, इस एरिया में जो माउंटेन्स हैं, उसे क्या माना जाता है? नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। इधर के पहाड़ों को क्या माना जाता है? नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। इतनी बात आई समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. So the three prominent hill ranges from the west to east are the Garo, the Khasi and the Jaintia, है ना? तो ये जो मेघालय में इस डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंडेड एरिया है, वहां पर 3 स्मॉल रेंजेस हैं, ठीक है? सो गारो रेंज, उसके बाद खासी और उसके बाद क्या कहलाती है? जैंतिया हिल्स। ठीक, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट, है ना? सो वेस्ट बाउंड्री किससे बनेगी? वेस्टर्न घाट से, और ईस्टर्न बाउंड्री किससे बनेगी? ईस्टर्न घाट से। ठीक, वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट के वेस्टर्न घाट के पैरेलल में क्या होगा? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसी तरीके से ईस्टर्न घाट के पैरेलल में क्या आएगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So dear students, already it is 8:42, so the scheduled time for this class is over. Okay, so I am going to bound up this session. Okay, we'll continue our revision in tomorrow's live class. That's all for today live class, students. Thank you, goodbye, and please take care of yourself and Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, tomorrow class. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, from tomorrow onwards, classes will be there. Beta, tomorrow onwards only the revision classes will be there. Only those subjects where the examinations are there, okay? Only they will take the Okay, sir. revision. Okay? Chalo. Okay, Bye. sir. Okay, sir.